India has 7,517 kilometers long coastline surrounding all three directions, east, west, and south. So diamonds and beads are available in plenty. There has been a wide use of gems and diamonds since ancient times. Since ancient time, trade of diamond and beads was carried out through sea routes with different countries across the sea. Diamond-studded ornaments have been in great demand in foreign since long. The world-famous diamonds like Kohinoor and Great Mughal were found from India only. As Indians are fond of diamond and beaded ornaments, variety is found in great deal. Earlier, rich and royal people used to wear diamond jewelry apart from gold ornaments. Diamonds, rubies, beads, emerald, and topaz were used to adorn and beautify the thrones and crowns and jewelry like bracelet and garland, etc. of kings. Beadwork is also found prominent in Gujarat. The beautiful bead torans, pachit, pots, bari or door grills, frames, chakra, a traditional wall piece, decorative coconut used at the time of ceremonies, lagnana nariyal, indhoni, modia, a net which covers the mouth of a bullock, horns, animal back cover, jewel, hand fans, etc. are knitted in a unique artistic way. India has been a leading country in jewelry since time immemorial. India is the only country in the world where expertise can be seen in enamel work apart from the gold and silver work. Enamel work means the artistic skill of inlaying the bright colors like red, green and blue in the gold-silver ornaments like rings, bangles, earrings, keychain, chain, etc. Experts of enamel work are seen especially in Jaipur, Delhi, Lucknow, Varanasi and Hyderabad. Zari work. Zari work is seen in India since ancient time. Golden and silver threads are woven with clothes and बंद कर अपने ये पेज खत्म करते हैं फिर तेरा डाउट हो गया लेती ठीक है चलो ध्यान दे दो डायमंड वाला पैराग्राफ जो है उसका लास्ट पैराग्राफ है India has been a leading country in jewelry since time immemorial. India is the only country in the world where expertise can be seen in enamel work apart from the gold and silver work. अब ये enamel work क्या है वो यहाँ पर आपने एक छोटा सा फोटो देखा होगा एक्चुअली वो लाख टाइप का मटेरियल बोला जाता है जिसके अंदर से मतलब ये बनते हैं मतलब ऑर्नामेंट्स और ऑर्नामेंट्स के अंदर पर्टिकुलर गोल्ड और सिल्वर को बात करके ऐसे सभी डिफरेंट मटेरियल्स में से भी ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इंडिया क्या है फेमस है Enamel work means the artistic skill of inlaying the bright colors like red, green and blue. ये दोनों वर्ड को अंडरलाइन करो एक्चुअली इनेमल वर्क के रिलेटेड का जब पूछते तब नहीं पता चलता काफी लोगों को इनेमल का मीनिंग क्या हो जाता है रेड ग्रीन एंड ब्लू ये तीन कलरों को यूज करके उसके अंदर मतलब क्या किया जाता है ऐसे बीड से या तो फिर गोल्ड है सिल्वर है वो सब कुछ मिक्स करके क्या बनाए जाते हैं ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं फाटी को कुछ शांति से खड़ा रहता है पहले फाटी को सो इनेमल वर्क मींस अंडरलाइन करो ये लाइन इनेमल वर्क मींस the artistic skill of inlaying the bright colors like red green and blue in the gold silver ornament
लाइक जैसे यहाँ पर आपने पिक्चर देखे थे, उसके रिंग बनाई जाती है, बैंगल्स बनाए जाते हैं, इयररिंग्स बनाई जाती है, की चेन बनाया जाता है, चेन बनाया जाता है, राइट। शायद शायद आपके घरों में अगर एंसेस्ट्रल मतलब अगर ग्रैंड मदर वगैरह के अगर कोई ऑर्नामेंट्स है तो शायद आपको ऐसा देखने को मिले। आजकल अभी बहुत कम हो चुका है वो चीज। एक्सपर्ट्स ऑफ इनेमल वर्क आर सीन स्पेशली, अंडरलाइन करो एरिया के नाम, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद। मानी ये सभी जगहों पे ज्यादा इनेमल वर्क होता है और यहाँ की जो चीजें उसको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। जरी वर्क, सो जरी वर्ड से तो आप फैमिलियर हो, जैसे वो ग्लिटरिंग वाली आप पेन वगैरह यूज करते हो ना, सो जरी वर्क इज सीन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। सालों पहले दो ही कलर अवेलेबल थे और वो कौन से थे, गोल्डन एंड सिल्वर। Golden and silver threads are woven with cloth and embroidery is done with gold and silver threads to decorate the clothes। लेकिन देखो अभी हम जो जरी बोलते हैं ना, वो एक्चुअली जो ग्लिटरिंग वाली चीजें होती है उसको ही हम जरी बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स आर woven with cloths and embroidery is done with the golden and silver threads। मानी गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स मानी उसके धागों का यूज किया जाता था एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। सूरत इज अ प्रोमिनेंट प्लेस फॉर जरी वर्क, अंडरलाइन करो इसको। जरी वर्क के लिए सबसे ज्यादा कौन सा प्लेस फेमस है, तो सूरत। प्रिंटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ जरदोसी वर्क हैव अ यूनिक ब्यूटी। Even artisans of Surat could make beautiful dresses like, underline करो, साड़ी, पानेतर, गरचोला, etc. bordered with जरी if needed। जहाँ पर ऐसी ग्लिटरिंग वाली ये जरी का यूज किया जाता था, लेकिन साथ में गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स मानी दोरे का धागे का भी यूज किया जाता था। आया समझ में? बोल अभी डाउट कौन सा, कहाँ पर है, इसका डिफरेंट पूछ रही है। कॉल कोई डाउट? पेज नंबर 11, उसके अंदर अभी हम दो टॉपिक फिनिश करेंगे, मेटल वर्क एंड वुडन आर्ट। फिर हम लेक्चर खत्म करेंगे, होमवर्क देंगे, शांति रखो। मेटल वर्क, खड़ा रहे। मेटल वर्क is also a very old form of an art of India। Metal age began and developed after Stone Age। अंडरलाइन करो इसको। आदि मानव जो थे वो लोग स्टोन एज में जीते थे। स्टोन एज के बाद जिसका ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है वो क्या है, मेटल। The artisans of Lothal made different weapons like sickle, drill and needle etc. with copper and bronze। तो copper and bronze को अंडरलाइन करो। मेटल के तौर पे किसका यूज होता था, तो कॉपर एंड ब्रोंज। और यहाँ लिखा है कहाँ के आर्टिसंस, लोथल। Moreover, they prepared utensils, idols and pots। Utensils मानी बर्तन, idols मानी भगवान की मूर्तियाँ, and pots मानी पानी भरने के जो utensils होते हैं वो। Arms and ammunition for walls were made up of metal। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए जो पहना जाता है बक्सर टाइप। जनरली आपने देखा होगा पहले के जमाने में जो लोग थे वॉर लड़ने जाते थे, ऐसे सिर के ऊपर आयरन का टोपी पहनते थे, हाथ
को कवर अप करते थे, चेस्ट को कवर अप करते थे वो। Gold and silver were used for making ornaments. Copper, brass and bronze were used to make utensils and ideals. Where iron was used to make instruments and weapons. लास्ट की 2 लाइन को अंडरलाइन करो। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स के लिए यूज होते थे, कॉपर, ब्रास एंड ब्रोंज यूटेंसिल्स बनाने के लिए, एंड आयरन यूज होता था इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेपन्स बनाने के लिए। 2 जन और ढूंढ ले, चल जल्दी। वुडन आर्ट। Man, trees and forests are closely associated with each other. Initially, wood was used as a firewood. सालों पहले जो आदि मानव था वो उसको लकड़ी का सिर्फ एक ही यूज आता था और वो था लकड़ी को जलाना। Later on for making weapons, धीरे धीरे उन्होंने लकड़ियों का ही यूज किसके तरीके से किया, वेपन के तौर पे। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी फिर वुड का यूज होने लग गया। ग्रेजुअली वुड वाज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक फॉर मेकिंग आइडल्स, टॉयज फॉर चिल्ड्रन, वुडन पिलर्स, विंडोज एंड डोर्स, स्मॉल हट्स ऑन टॉप ऑफ द टेरेस, फ्रॉन्ट्स, चेयर्स एंड ग्रिल्स। जो सालों पहले गांव के घरों के अंदर लकड़ियों का यूज होता है, विंडो बनाने के लिए, डोर बनाने के लिए, इवन पिलर्स बनाने के लिए। छत भी जो होती थी वो भी पूरी किसकी बनती थी, वुडन की बनती थी, राइट। इन दिस वे wood carving was developed. Wooden furniture like swings and toys of Cedar and Sankheda in Gujarat are well known. Last line को अंडरलाइन करो। धीरे धीरे वुडन का जो फर्नीचर बनता गया, जिसके अंदर झूले बनाए जाते हैं, छोटे बच्चों के जो क्रैडल्स बनाए जाते हैं, वो ज्यादातर ईडर एंड संखेड़ा के जो गुजरात के अंदर आए हुए ये प्लेस है वो ज्यादा फेमस है। आज का होमवर्क टिक मत करो। मैम, रेडी रहना, रेडी मैम। बंद कर दे, वरना रोक, स्टॉप कर।